Hi CLAT aspirants, this is Noni Mehta and I welcome you all here in this video. And this video is all about dealing with the English section. So we want to make the strategy for the English section this month. So let's delve into this video and let's discuss what kind of strategy should we follow in this May month. So as far as the students are concerned, we have got three types of students, that is droppers, school going aspirants and the beginners. Beginners means they have taken the admission right now, probably in a month, probably in a week or probably in 2-3 days they have taken the admission. So let's start the strategy for this for the droppers. Okay, the droppers, you have got ample amount of time. Of course, yes, you don't have any other work except studying for the CLAT or the law entrance exams. So what you have to do, the first and the foremost thing which I always insist upon is reading English newspaper. That's a must. You cannot escape. You have to do it. So of course the Hindu or the Indian Express you have to read, and that also the editorial section. I am sure you would be doing it consistently, unfailingly. And yes, again, fiction and non-fiction novels, books, which I keep on insisting upon. Acha, I give you two suggestions for that, for the books. What are those suggestions if you want? Like this, why don't you opt for suspense thriller novels? There are two suggestions for the suspense thriller novels. That is, one is Jeffrey Archer's Next in Line. It is, wow, what a suspense thriller novel it is. Every page there's some kind of new suspenses there which you cannot escape from that. So you will just love it. So Next in Line, that's the book's name. I'll write it down. Okay, so yeah, that is Jeffrey Archer's. Next is The House Without Windows. Okay, again, this is a quite a riveting story. It's about an Afghan family. So House Without Windows. I hope I don't have to write it down, probably you would remember. These are the two books, Jeffrey Archer's book and the Noor Hashmi's book, that is about the Afghan family. So do read them, they are quite nice and you would love it. Magazines, I keep on insisting, which are those? Science, because these days what I can see that even the droppers, they are feeling that they are they feel like science passages are too difficult for them. सारे passages मतलब English over and all वैसे समझ में आ जाता है, but as far as science passages are concerned, they felt they always fretting over the science passages. So अभी current mock test में भी आया, उनको थोड़ा सा दिक्कत आया है. तो please science magazines जो होती हैं वो read करिए. साइंस रिलेटेड मैगजीन्स लाइक साइंस है, द वीक, तो वीक तो मतलब ओवरऑल उसी के लिए है, और रीडर्स डाइजेस्ट है ना, तो वेरी गुड आई वुड से मैगजीन, फोर्टनाइटली मैगजीन है. तो ये सब रीड करिए. द वीक है, साइंस है, हमारा टाइम है, ठीक है. ऑल दीज इंटरनेशनल मैगजीन्स यू हैव टू रीड एंड गो फॉर द इंटरनेशनल वन प्लीज़. तो इंडिया टुडे आपको पसंद है, बहुत अच्छी बात है, बट वी हैव टू गो फॉर दिस eclectic kind of reading. Now eclectic kind of reading, that means a very diversified kind of reading, I am talking about. So yes, so at least one magazine, right? At least दो हो तो बहुत बढ़िया है. Then going through some blogs or websites, maybe you're the favorite blogs or website of anything of your choice. Probably you like cooking, probably you like anything related to innovation or related to finance, anything would do. But my suggestions for the websites which I have given it earlier also, like Philosophy Now, okay, The Atlantic, these are some websites. Aeon, of course, for articles and essays. Aeon, it's a must, you have to. Okay, Aeon आर्टिकल्स और एसेज उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है कई लोगों के लिए. तो इफ़ यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स, यू कैन आस्क मी इन द क्लास ऑल्सो, और यू कैन सेंड मी पर्सनल इंक्वायरी ऑल्सो दैट हाउ टू गो थ्रू दिस Aeon's आर्टिकल्स एंड एसेज.
तो बहुत अच्छा है, इयॉन तो पढ़ना ही पढ़ना है उसके आर्टिकल्स और एसेस। बाकी फिलॉसफी नाउ मैं बात कर चुकी हूँ, फिलॉसफी नाउ बहुत अच्छा है, द हिस्ट्री टुडे है ना, द साइंटिफिक अमेरिकन, ये सब आप प्लीज़ वेबसाइट्स पे जाइए। याद रखना है आपको, डाइवर्सिफाइड रीडिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट, वॉचिंग फिल्म्स, वेब सीरीज, यस इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, इंग्लिश सेक्शन। तो लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट विद लर्निंग, ठीक है, यही हमारा एजेंडा है as far as English section is concerned. So watch your favorite films, web series, even if you like, you know, Hindi ones also, कि हमें तो हिंदी web series ही पसंद है, that's okay, but keep this English subtitles on so that you can read it, ठीक है। आपको अपना रीडिंग स्पीड बढ़ाना है, no matter from wherever it comes, right? तो हिंदी वेब सीरीज, इंग्लिश वेब सीरीज, एनीथिंग वुड डू, बट इफ इट्स इन एनी अदर थिंग, नॉट हिंदी बट एनी अदर लैंग्वेज, इफ यू आर वॉचिंग इट, प्लीज कीप द इंग्लिश सबटाइटल्स ऑन, ठीक है, राइट? Even you like Turkish dramas, then also it would good, that's okay, है ना, but language remember in English. There are some recommendations for the movies. See these two movies, The Queen and The King's Speech. Why these recommendations? Because you know, the English used in these two movies, which are you know, are at far superior, I would say. So idioms, phrases, one-liners, all are good. So please do watch these two movies, The Queen and The King's Speech. देखिए, तो पूरा वो यूके एक्सेंट वाला मामला लगेगा आपको, बिल्कुल ब्रिटिश इंग्लिश है, तो यू वुड एंजॉय। देन लिसनिंग टू सम पॉडकास्ट, टिकटॉक्स, है ना, इसका सजेशंस मैंने पहले पिछले वीडियो में भी दिया था, विच वर रियली गुड, लाइक यू नो, लेक्स फ्रिडमैन है, टिम फेरिस शो है, ठीक है। बट इवन इफ यू लाइक दोज इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स लाइक रणवीर अलाहाबादियाज बियर बाइसेप्स, ठीक है, दैट वुड गो। ही स्पीक्स मोस्टली इन इंग्लिश, दैट ऑल्सो वुड गो, है ना, तो दैट्स ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। बट डू मतलब आई मीन वेराइटी ऑफ सोर्सेज शुड बी देयर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीडिंग करिए, रीड करिए, वॉच करिए, लिसन करिए, एंड सबका जो मिक्स होगा तो उससे जो रिजल्ट मिलेगा आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। बट आवर मेन पर्पस रिमेंबर इज टू एनहांस द इंग्लिश नॉलेज, द इंग्लिश वोकैबलरी, ठीक है। रीडिंग स्पीड बढ़ाना है हमको, इंग्लिश वोकैबलरी हमें बिल्डअप करना है, राइट। व्हाट मोर, मॉक टेस्ट, this is the basics, and if you want to, it's like the stepping stone for the success. What you have to solve at least 25 mock tests. आप every Sunday आप mock test दे रहे हैं, या जब भी once in a week you are giving the mock test, that's not enough. जो पुराने mock test papers भी हैं, प्लीज़ उनको आप solve करिए, है ना, put the timer on, right, and accordingly solve the mock test. And just see how many questions you have done it, and how many you couldn't attempt it, and what is the accuracy like. Please make the mock diary. Anybody who hasn't made it, please do make it. It's very much essential, right? सो एनालिसिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। क्या समझ में नहीं आ रहा, मेरे से कौन से क्वेश्चंस नहीं हो रहे, आई कुडंट डू थीम बेस्ड क्वेश्चन, आई कुडंट डू टोन बेस्ड क्वेश्चन, और द फैक्चुअल क्वेश्चंस आर गेटिंग रॉन्ग, तो प्लीज़ अपनी जो भी वीकनेस है, जो भी दिक्कतें हैं आप फेस कर रहे हो, डू मेंशन इन दैट मॉक डायरी। सो मॉक एनालिसिस इज अ मस्ट, एंड इन अ मंथ यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 25 मॉक टेस्ट, ठीक है। स्पेशली इसमें इंग्लिश सेक्शन आपने एटलीस्ट इंग्लिश सेक्शन पूरा कर रखा हो। Now all, because English में it is only about RC, तो ऐसा लगे कुछ है तो नहीं, RC तो है सिर्फ रीडिंग रीडिंग रीडिंग, of course there is only RC, but when RC is there you have to see the vocabulary, ठीक है। vocabulary is the biggest component of our reading comprehension, so you have to see the vocabulary and plus grammar also. तो you have to enhance your vocabulary. How can you do it? By putting some methods like, you know, root methods apply करें. Teachers may have taught you about the root methods, और you know, the using flashcards. Flashcards पहले भी बता चुकी हूँ मैं, जिसमें क्या होता है, कार्ड के एक साइड में है ना, the word and the meaning is there, ठीक है, and the opposite side synonym and antonyms have been given. तो flashcards का जो आप लिखिए, उसको रिवाइज कर रहे हैं उस flashcards को. Mnemonics,
काइंड ऑफ एसोसिएशन टेक्निक, इट्स क्वाइट अ फन, है ना. तो वोकेबलरी विथ फन अगर आप किसी को नाम दे सकते हैं तो दैट इज़ निमोनिक्स. ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल लाइक मैंने अगर वर्ड किया है ये अभोर, ठीक है, दैट मीन्स हेट. हाउ कैन आई रिमेंबर दिस वर्ड, राइट? लाइक अब प्लस हॉर, राइट? उसको मैंने बाइफिकेट किया है. हॉर मीन्स लाइक हॉरर, तो हॉरर, ठीक है. अब हॉरर दैट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू वेरी नेगेटिव थिंग, सो दैट मीन्स हेट, डिसलाइक. तो अबहोर को दैट इज कॉल्ड एज निमोनिक्स टेक्निक. अबहोर से आप प्लीज कर सकते हैं. सो आप चाहें तो mnemonicsdictionary.com उसको आप फॉलो कर सकते हैं. दैट इज़ वेरी गुड and very helpful and also interesting. So mnemonics technique is a very good technique for the enhancement of vocabulary. Use mnemonicsdictionary.com. All right, so at least 10 words a day you have to learn new words. अब आप रूट मेथड से कर रहे हैं, आप निमोनिक से कर रहे हैं, या आपकी जो फैकल्टी जो करा रही है वो तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. देखिए आप न्यूज़पेपर रीडिंग में जो आपको वर्ड्स आ रहे हैं, through that you are learning new words. No matter what, you have to learn 10 new words a day. ठीक है, and revision is a must. अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, सिर्फ नया 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 रजिस्टर पे आप नोट डाउन कर रहे हो, उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो यू आर डूइंग द बिगेस्ट मिस्टेक. What you have to do? You have to do the daily revision, weekly revision and the monthly revision. Daily means जो पुराना कल का किया हुआ वर्ड्स उसको रिवाइज किया. Weekly means the whole week's words, vocabulary words which you have learnt it, you have to revise. Monthly, the whole 30-day day words which you have learnt it, you have to revise it. So you have to do the daily, weekly and monthly revision of the vocabulary words, right? So करना तो है, 6 months हैं और बिल्कुल है ना दिल लगा के तैयारी करिए विथ फुल डेडिकेशन, ऑल योर हार्ट्स ऑन दिस क्लैट प्रिपरेशन. All right, so synonym, antonyms, just note down, revise it, and if you can solve one vocabulary sheet, that means maybe your faculty has given it to you only vocabulary sheet, something like 50 questions of vocabulary, or probably you have taken from any other source, even from the module, anything, but at least 50 words का vocab test जो होता है ना वो दे दो ज़रा, तो that would be really good. और कितना टाइम आपको डेडिकेट करना है फॉर इंग्लिश. न्यूज़पेपर रीडिंग इट्स अ डिफरेंट, novels, magazines, that's different. You're listening, you're watching, you're reading anything, that is completely different. But है ना उसके अलावा 2 hours a day you have to dedicate it to English section, because if your English section is improved, then your critical section is improved, your legal reasoning has been improved. The 3 sections from one section, that is the English, could be improved, right? तो 2 hours a day सिर्फ इंग्लिश को डेडिकेट करने हैं, जिसमें यू हैव टू, व्हाट यू कैन डू, वोकैबुलरी यू कैन डू, और you can do this mock test, right? You can give the mock test in that. So reading, watching, listening is completely different thing. That's the another time you have to give it to them, and 2 hours a day only for this English preparation. Next we'll come to school going aspirants. Our school going CLAT aspirants, I can do understand that you have to go to school also. हालांकि आप regularly probably नहीं जा रहे होंगे school, but still you have to find out the time, because CLAT is for you. You have to crack the CLAT. ऐसा दिमाग में लाओगे तभी जाके ना dream college you can get it. So what you have to do? You have to dedicate your time wisely. You can't waste even your single minute. स्कूल में भी आपको कोई सब्सटीट्यूशन पीरियड होता है, तो प्लीज़ अपने क्लैट प्रिपरेशन पे उसे यूज़ करिए. यू आर गोइंग थ्रू बस, है ना, गोइंग एंड कमिंग थ्रू बस इन स्कूल, तो भाई क्या करना है, वो जो पीरियड भी है आप प्लीज़ है ना कुछ रीड करने में आप बताइए. आप न्यूज़पेपर रीडिंग में करिए, कुछ भी आप नॉवेल्स रीड करिए उस टाइम, ठीक है. न्यूज़पेपर नहीं ले जा सकते हैं तो नॉवेल्स. सो रीडिंग एडिटोरियल्स, एटलीस्ट 5 to 6 एडिटोरियल्स, है ना, एडिटोरियल सेक्शन में. और डाइवर्सिफाइड रीडिंग, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो खुद को पसंद है वो पढ़ लिया है. तो क्या पढ़ना है आपको फिलॉसफी पढ़ना है, लिटरेचर पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, ठीक है. दोज डे टू डे एनेक्डोटल थिंग्स आर देयर, उसके बारे में रीड करना है, एनीथिंग, ठीक है, प्लीज़ रीड इट. वही वोकेबलरी के
वही हमारा जो मैगजीन्स रीड करिए, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, टाइम है, द वीक है, साइंस है, इंडिया टुडे है, आउटलुक है, फ्रंटलाइन है, और हमारा रीडर्स डाइजेस्ट है। ये सब मैगजीन्स में जो पसंद है आपको, है ना, एनी अदर थिंग ऑल्सो, प्लीज़ रीड इट। देन बुक्स, नॉवेल्स का सजेशंस, ऑलरेडी आज मैंने 2 नॉवेल्स का सजेशन आपको दिया है, बोथ आर सस्पेंस थ्रिलर नॉवेल्स। Then going through some good content websites, already mentioned, Eon, Philosophy Now, History Today, ठीक है, साइंटिफिक अमेरिकन, उस पर जाइए वेबसाइट्स पे, ईॉन के आर्टिकल्स और एसेज पढ़ना, इट्स अ मस्ट। अगेन एवरी डे 1 आर्टिकल फ्रॉम ईॉन, यू हैव टू डू इट, और एसे। नहीं समझ में आ रहा है, आस्क मी इन द क्लास इफ यू अटेंडिंग माई क्लास, or you can pass me through inquiry, through messaging, you can also ask me question, मैम ये नहीं समझ में आ रहा आर्टिकल, क्या करें हम, ठीक है। Next is listening to podcasts, TED Talks, already given you some suggestions, but whichever you feel like, right? You are Gen Z generation, you know it, which podcast you want to go for, ठीक है, ये सब चीज़ें आप करते रहते हैं, तो TED Talks, yes, for sure. Watching films, web series, anything of your choice. Even it's Hindi or in any other language, keep the English subtitles on. And if you're watching English web series and films, thumbs up. Next, solve questions of inferences, tones, main idea, theme, approach based questions, क्योंकि यहीं पे आप फंसेंगे. You would be in a fix. कभी थीम का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पोएटिक डिवाइसेस का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, इन्फ्रेंसेस तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग में भी ऑफ कोर्स हेल्प करेंगे, तो उसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, whether in the mock test, whether anywhere, any other source, whichever you find, ठीक है, आपका मॉड्यूल भी है, तो try to do these kinds of questions. Next, at least 20 mock test in this month you have to solve it. पुराने LPT के mock test आप उठा लीजिए, उनको solve करिए, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो आप लास्ट ईयर के भी मिल जाएंगे आपको, 3 मंथ्स पुराने, 4 मंथ्स ओल्ड, आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। प्लीज़ एटलीस्ट 20 मॉक टेस्ट आप सॉल्व करिए, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं और का भी सोर्स आप ढूंढे। वैसे टेलीग्राम पे यू आर गेटिंग द मॉक टेस्ट, है ना, तो कहीं ना कहीं से आपको मिल जाते हैं, और दूसरे कोई यू कैन गो थ्रू इट, बट LPT इट्सेल्फ बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है ऑफ मॉक टेस्ट, यू सॉल्व दोज मॉक टेस्ट, राइट। तो 20 in a month, and analysis is a must. Make the mock diary. अभी मैंने mock diary के बारे में, ड्रॉपर्स के बारे में बताया, वैसा ही mock diary आपको बनाना है, ठीक है, and write down whichever your problem is. थीम के क्वेश्चन नहीं हो रहे, फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं हो रहे, टोएटिक डिवाइसेस में दिक्कत आ रही है, वोकैबुलरी में दिक्कत आ रही है, जिसमें भी दिक्कत आ रही है, प्लीज़ मॉक डायरी में मेंशन करिए हर मॉक टेस्ट में, ठीक है, ये प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हमसे। तो एनालिसिस इट्स अ मस्ट, सो दैट यू कैन ओवरकम योर प्रॉब्लम, ठीक है। वोकैबुलरी मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस, है ना, फ्लैश कार्ड्स, एप्स डाउनलोड करिए, द हिंदू वोकैब ऐप, दैट्स अ वेरी गुड ऐप, यू कैन डाउनलोड इट, द हिंदू नहीं, द हिंदू वोकैब ऐप, तो वेरी गुड ऐप फॉर बिल्डिंग अप योर वोकैबुलरी। सो वर्ड पावर मेड ईजी पढ़ना है, बिल्कुल रीड करिए, ठीक है। अगेन डेली, वीकली, मंथली रिवीजन होना ही चाहिए वोकैबुलरी वर्ड्स का, विच एवर वर्ड्स यू आर डूइंग, एटलीस्ट मैं भी आपको सजेस्ट करूंगी 6 to 7 वर्ड्स अ डे, न्यू वर्ड्स इन अ डे, यू हैव टू डू इट, बट रिवीजन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आप वर्ड्स नए नए याद कर रहे हो, दैट्स ओके, बट उनका रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो नहीं होगा, ठीक है। रिवीजन इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, तो गिव मोर एम्फेसिस ऑन रिवीजन, आई वुड से, वरना रिटेन कैसे करोगे, ठीक है। देन सेल्फ स्टडी, like 1.5 hours English, again reading your editorial section, reading magazine, you are watching some web series etc., listening podcast, that's absolutely different, ठीक है, उसको साइड में रखिए। उसके अलावा you have to dedicate 1.5 hours a day only for English, ठीक है, याद रखना, if English would be improved, then only your critical reasoning portion and the legal reasoning section would be improved. First you have to improve this, right? So school going aspirants, I hope you won't waste not even a single minute, and implement the strategies as soon as possible for the May month. Now we'll come for the beginners.
यू नो बिगनर्स फर्स्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस क्लैट सिलेबस, ठीक है। जो भी क्लैट सिलेबस है आप प्लीज़ उसको समझिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग, टोटल क्वेश्चंस, इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस कितने आते हैं, 24 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर पैटर्न थोड़ा समझने की कोशिश करिए, इट्स नॉट इक्वलेंट टू स्कूल आई वुड से। आप ये मत सोचिए मेरे स्कूल के पैसेजेस में से बहुत अच्छे सॉल्व हो जाते थे तो बस यहाँ पे भी मैं ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत ही नहीं है, आई विल गेट 22 आउट ऑफ 24 लाइक इट्स गोइंग टू बी अ केक वॉक। नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक, ठीक है। ईजी नहीं रहेगा, आपका थोड़ा सा डिफरेंस है स्कूल और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, आप इसके अंदर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन भी भारी पड़ सकता है आप पे। तो प्लीज़ रिमेंबर, अंडरस्टैंड द क्लास सिलेबस एंड प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग अगेन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एक्सेट्रा, नॉवेल्स में मैं आपको सजेशंस मैंने पिछली बार भी दिए थे, वही मैं जो फॉर द बिगनर्स आई एम सजेस्टिंग, बिगनर्स जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, मतलब रिसेंटली इन अ वीक दे हैव ज्वाइंड, दोज आर कॉल्ड एज बिगनर्स, ठीक है। तो प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग अकाथा क्रिस्टीज नॉवेल्स, शेक्सपियर, ठीक है, क्योंकि आपके शेक्सपियर से भी बिल्कुल आ सकता है, क्लासिक से जेन ऑस्टिन, देन यू हैव गॉट चार्ल्स डिकेंस, अर्नेस्ट हेमिंगवे, इन सब की नॉवेल्स पढ़िए प्लीज़, रस्किन बॉन्ड, अनीता देसाई, ठीक है। उसके बाद आपको सिडनी शेल्डन, आपको जेम्स क्लियर की जो हमारी बुक है एटॉमिक हैबिट्स वो रीड करिए। ये सब जो हमारी जो रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, एल्केमिस्ट, ये सब नॉवेल्स, ये सब सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, इनको रीड करिए, ये सब बेसिक बुक्स हैं तो आपके काम आएगी। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टोन्स, इन्फ्रेंसेस, मेन आइडिया क्या होते हैं, ये किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, probably from the faculty, probably from the online classes, vocab videos, sorry not vocab, online videos of LPT लॉ प्रेप ट्यूटोरियल, कैसे भी करके कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए ताकि आप फिर नेक्स्ट इनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। फिर नोट डाउन ऑल द डिफ़िकल्ट वर्ड्स विच आर कमिंग वाइल रीडिंग, ठीक है। आर्टिकल पूरा पढ़िए, उसके बाद आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन कर दिए, देन नोट इट डाउन द मीनिंग ऑफ दोज डिफ़िकल्ट वर्ड्स, right, and do the revision daily, weekly, monthly, already discussed, all right। तो रेगुलरली रिवीजन करना है। नेक्स्ट वोकैब ऐप्स, मैंने अभी बताया द हिंदू वोकैब ऐप बहुत बढ़िया ऐप है, इसमें आप एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं, और भी एनी अदर ऐप विच यू लाइक इट। बैरन्स का, मंगूश का, GRE का वर्ड लिस्ट प्लीज़ आप लोग डाउनलोड करिए, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन वोकैबुलरी, और उससे वर्ड्स करिए, प्रोबेबली 5 वर्ड्स अ डे यू हैव टू डू इट, ठीक है, 5 न्यू वर्ड्स अ डे। सो ड्रॉपर्स 10 न्यू वर्ड्स अ डे, 6 to 7 new words a day for school going aspirants, and for the beginners at least 5 words a day, okay, new words, okay। नेक्स्ट इट्स लाइक वही मूवीज़ वॉच करो जो पसंद है, एनीथिंग ऑफ योर चॉइस, ठीक है। तो आपको मसाला मूवीज़ पसंद है, आपको ड्रामा पसंद है, आपको रोमांटिक पसंद है, आपको एक्शन पसंद है, व्हाटएवर यू लाइक डू वॉच इट, ठीक है। बट इफ़ यू वॉचिंग एनी हिंदी वन और ऑफ योर नेटिव लैंग्वेज सीरीज, प्लीज़ है ना, सब इंग्लिश सब टाइटल्स शुड बी ऑन, दैट्स माई रिक्वेस्ट। तो रीड फ्रॉम दोज इंग्लिश सब टाइटल्स, देन इट्स गोइंग टू हेल्प यू, वरना हिंदी मूवीज़ वेब सीरीज़ देखने से कुछ फ़ायदा नहीं है इस क्लैट इंग्लिश सेक्शन में। देन ब्लॉग्स और वेबसाइट्स के एग्जाम्पल्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो वो प्लीज़ ईऑन के ज़रूर से आप है ना रीड आर्टिकल्स एंड एसेज, तो वो पहले है, उसके बाद दूसरी चीज़ें आएंगी, फिलॉसफी नाउ एंड हिस्ट्री टुडे, ये सब बाद में है। I hope you have got it right. So these are some strategies which you have to follow in the May month. All the best to you. I hope if you have any problem you can ask me, and nothing to worry about, but still to worry about, right? तो अभी से आपको है ना, you have to give 100% with 100% dedication and hard work, and you can definitely achieve your dream. Right. Thank you so much from my side. All the best.